अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड दैट टॉपिक इज सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? व्हाट आर सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स whose concentration can be varied within certain limits. So they are homogeneous mixtures of two or more components whose concentration can be varied within some certain limits. लेकिन यहां पे as far as AIEEE is concerned हम binary solutions के बारे में स्टडी करेंगे. So binary solutions जो हैं they are made up of two components. Binary solutions जो हैं they are made up of two components. One component is called solute और जो दूसरा component है that is known as solvent. Solute वो component होता है solution का which is present in less proportion by weight और solvent वो component होता है solution का जिसका proportion by weight ज्यादा होता है as compared to solute. इसका अगर एग्जांपल लें हम बाइनरी सॉल्यूशंस का, NaCl dissolved in water is a binary solution. NaCl dissolved in water is a binary solution. इस केस में NaCl is solute and water is solvent. और ऐसी बाइनरी सॉल्यूशंस जिसमें वाटर इज द सॉल्वेंट उसको हम एक्वस सॉल्यूशन भी कहते हैं और जिसमें H2 इज नॉट अ सॉल्वेंट, ऐसी कोई सॉल्यूशन हो जिसमें H2 इज नॉट अ सॉल्वेंट, कोई और कंपाउंड और कंपोनेंट इज द सॉल्वेंट, दैट सॉल्यूशन विल बी नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन. सॉल्यूशंस जो है बाइनरी सॉल्यूशंस दे कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. Binary solutions can be of many types, depends upon the solute and the solvent. For example, first of all, we will consider ऐसी binary solutions जिसमें solvent जो है that is water or liquid और solute is solid. तो इसका एग्जांपल जिसमें सॉल्यूट इज सॉलिड एंड वाटर और लिक्विड इज द सॉल्वेंट, उसका कोई एग्जांपल लें कि सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, एग्जांपल कैन बी NaCl in H2O. Second type, liquid in liquid. तो इसका एग्जांपल हो सकता है इथेनॉल इन वाटर. Third type of solution, gas in liquid. इसका एग्जांपल है जैसे एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कोक है, एरेटेड ड्रिंक्स. नेक्स्ट टाइप्स में हम कंसिडर करेंगे फोर्थ टाइप जो है जिसमें सॉल्वेंट विल बी गैस. So first is liquid in gas. So liquid in gas का एग्जांपल हो सकता है humidity in air. Humidity in air. Next type, gas in gas. इसका एग्जांपल है air itself. Nitrogen plus oxygen. So air is an example of binary solution of gas in gas. Next is sixth type and that is solid in gas. और solid in gas का example हो सकता है iodine vapors in air. तो इसमें हमने तीन टाइप्स तो ये कंसिडर की जिसमें सॉल्वेंट वाज लिक्विड. नेक्स्ट टाइप्स जो कंसिडर की उसमें गैस इज लिक्विड. नेक्स्ट थ्री टाइप्स जो हम कंसिडर करेंगे दे विल बी जिसमें सॉल्वेंट विल बी सॉलिड. सो फर्स्ट टाइप इसमें है सॉलिड इन सॉलिड.
सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है एलॉयज। नेक्स्ट 8th एग्जांपल, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जितने भी होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। सो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जो हैं, दे आर द एग्जांपल of this type of solution, liquid in solid. And last type is gas in solid, और इसका एग्जांपल है गैस इन सॉलिड का, गैस ट्रैप्ड इनसाइड certain minerals, gas in minerals. So these are the 9 examples of binary solutions. First is solid in liquid, that is NaCl in H2O. Second is liquid in liquid, for example ethanol in water. Third is gas in liquid, that is example is aerated drinks, Coke, etc. Fourth is liquid in gas, that is humidity in air. Next is gas in gas, air is an example of that. Sixth is solid in gas, iodine vapors in air. Next is solid in solid, alloys. Liquid in solid, copper sulfate dot 5H2O, hydrated salts. Last type is gas in solid, that is gas in minerals is the example of that, hydrogen inside palladium, that can be taken as example of this. Next is methods to express the concentration of solutions. Methods to express concentration of solutions, इसका थोड़ा पार्ट हमने मूल कंसेप्ट में किया था कि what are the methods to express the concentration of the solution. First is percentage method. First is percentage method. For example, अगर हम कहें कि 10% Na2CO3 by volume, 10% Na2CO3 by volume, इसका मीनिंग होता है कि 10 grams of Na2CO3 is present in 100 milliliter of solution. So by volume means कि 10 grams of Na2CO3 is present in 100 milliliters of solution. एक और मेथड है परसेंटेज वाला, 10% Na2CO3 by weight. अगर ऐसा कहा जाए कि 10% Na2CO3 by weight, it means that 10 grams of Na2CO3 is present in 100 grams of solution. So these are the two methods to express the concentration of the solution by percentage method. First है by volume, second is by weight. For example, अगर हम कहते हैं कि 10% Na2CO3 by volume is there, that means कि 10 grams of Na2CO3 is present in 100 milliliter of solution. और अगर कहा जाए कि 10% Na2CO3 by weight is present, that means 10 grams of Na2CO3 in 100 grams of solution will be present. Next method is strength of the solution. अगर आपको strength of the solution given हो तो पहली बात strength of the solution होता क्या है? What is the strength of the solution? तो strength of the solution means कि कितना grams solute है कितने liters of solution में. So it is nothing but grams of solute dissolved per liters of solution. Strength of the solution means grams of the solute dissolved per liter of the solution. Next method is molarity. Third method is molarity. मोलैरिटी वाला
मेथड हमने मोल कंसेप्ट में भी किया है, और इट वाज मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर liters of solution. Number of moles of solute dissolved per liter of the solution. And number of moles, उसमें भी मैंने solute को B से रिप्रेजेंट किया था, solvent को A से रिप्रेजेंट किया था, तो वैसे ही यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स solute, और मोल्स कैसे निकलते हैं किसी भी सब्सटेंस के, weight of that component divided by molecular weight of that component. So number of moles of solute अगर निकालने हैं अपने, तो that will be weight of the solute divided by molecular mass of the solute. Number of moles of the solute. और liters of the solution, नीचे चाहिए liters of the solution. अगर यहाँ पे V milliliter of solution is given, तो इसको आप convert करोगे into liters. कैसे करेंगे? Divide करेंगे इसको आप 1000 से. So V milliliter divided by 1000, this gives you solution in liters. So this is the expression for molarity of the solution. Number of moles of solute WB upon MB, these are the number of moles of solute, divided by volume of the solution in liters. If the solution is given in milliliters, तो आप उसको convert करोगे liters में, dividing it by 1000. Next method is fourth method, that is molality. Molality is number of moles of solute per kg of solvent. Per kg of solvent. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है दे कैन बी कैलकुलेटेड, और फॉर्मूला है कि WB अपॉन MB. WB इज नंबर वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स, MB इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, और सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे A से. तो WA अगर ग्राम्स में सॉल्वेंट है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजीज में, तो WA डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. Number of moles of solute per kg of the solvent. Next is normality. Next method is normality. Or normality is number of gram equivalents of solute. Number of gram equivalents of solute per liters of solution. Per liters of solution. और number of gram equivalents कैसे निकलते हैं? Number of gram equivalents जो हैं they are equal to weight of the solute upon equivalent weight of the solute. और equivalent weights निकालने के पूरे method जो हैं they have been discussed in the mole concept. और liters of the solution, if it is V milliliters of solution, तो इसको आप convert करेंगे into 1000, V milliliters divided by 1000, this will give you liters of solution. So this is the normality method. और एक रिलेशन जो मोल कंसेप्ट में भी डिस्कस हुआ है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, दैट रिलेशन यू शुड रिमेंबर, एंड दैट रिलेशन वाज कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी. एसिड्स के केस में वैलेंसी विल बी बेसिसिटी. जैसे H2SO4 में बेसिसिटी क्या होती थी? बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन एन एसिड. जैसे H2SO4 की बेसिसिटी विल बी 2, और आपको गिवन है कि 0.1 मोलर H2SO4, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे इसकी? 0.1 into 2, that is 0.2 will give you the normality of H2SO4. Similarly, in case of bases, for example calcium hydroxide, वैलेंसी आपने क्या लेनी है? एसिडिटी. और एसिडिटी
in case of bases is nothing but it is number of replaceable OH negative ions present in a base. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी होगी that will be 2. इस केस में भी अगर मान लीजिए आपको दिया है कि 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट, इसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी? नॉर्मेलिटी विल बी 0.1 into 2, that is 0.2 in this case also. So नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से निकल सकती है. अगर मोलैरिटी गिवन है तो नॉर्मेलिटी आप डायरेक्टली वैलेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल गिव यू द नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन. नेक्स्ट मेथड इज मोल फ्रैक्शन. मान लीजिए मोल फ्रैक्शन आपको निकालने हैं एक्स से सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने उसके मोल्स ऊपर होने चाहिए न्यूमरेटर में. Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb, दिस विल गिव यू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट Xb, that will be equal to number of moles of solute divided by total number of moles. और एक रिलेशन आपको बताया गया है पहले भी मोल कंसेप्ट में कि XA प्लस XB विल बी इक्वल टू 1. अगर एक की मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरी आप कैलकुलेट कर सकते हो सब्ट्रैक्ट करके 1 में से. इफ XA is known, XB can be calculated 1 minus XA. Next method is mass fraction. और मास फ्रैक्शन को भी अगर x से रिप्रेजेंट करूं मैं, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू WA वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय WA प्लस WB वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ solute. That will give you the mass fraction of solvent, and mass fraction of solute will be equal to WB divided by WA plus WB. This will give you the mass fraction of solute. So in this case also XA plus XB will be equal to 1. So these were the methods to express the concentrations of the solution: normality, molarity, molality, mass fraction, mole fraction, strength of the solution, percentage method. Next we have to come to the solutions, main solution part, और इसमें सबसे पहले we have to discuss the vapor pressure of solutions. Or first of all we will discuss the vapor pressure of liquid. So what is the vapor pressure? Vapor pressure is the pressure exerted by the vapors which are in equilibrium with the liquid. So they have to be in equilibrium state. इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए यहां पे इस कंटेनर में वाटर पड़ा हुआ है और दिस कंटेनर इज कनेक्टेड विद मैनोमीटर. विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर वी कैन मेजर द प्रेशर. और इस मैनोमीटर में यहां पे दिस इज मर्करी. दोनों लिम्स में मर्करी स्टार्टिंग में इट विल बी इक्वल. और मान लीजिए यहां पे लिक्विड है, कोई वाटर है, और दिस apparatus, this container was evacuated with the help of vacuum pump. इसमें कुछ भी गैस नहीं अंदर, कोई भी एयर नहीं अंदर, it is evacuated. तो इससे क्या होगा, इवेपोरेशन शुरू होनी है, it will start evaporating, और जो वेपर्स बनेंगे वो यहां पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और होगा क्या कि आस्ते आस्ते यहां से दिस मर्करी लेवल ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, और यहां से मर्करी लेवल
ऊपर आना शुरू हो जाएगा और ये चलता रहेगा, लेकिन एक स्टेज आएगी कि दिस मर्क्यूरी लेवल बिकम्स कांस्टेंट, और जहां तक ये नीचे गया वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा, जहां तक वो ऊपर गया वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। वो हुआ क्या है कि कांस्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि वेपर प्रेशर जो है दैट हैज बिकम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और उस स्टेट को कहा जाता है कि दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। When the rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, that state is known as equilibrium state। और उस equilibrium state पे, equilibrium point पे जितना ये वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे onto the liquid, उसको उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो वेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स onto the liquid, and the vapor should be in equilibrium with the liquid, they have to be at the equilibrium point। और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? वो पॉइंट, वो स्टेट जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे कि कितना फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है तो उस केस में वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी विल बी लेस, इवेपोरेशन जो है कम होगा तो वेपर भी कम बनेगा। तो नेचर ऑफ द लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है? इट अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्सर्ट हो रही हैं, जितनी एग्जिस्ट कर रही हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस। अगर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी कम होगी, वेपर प्रेशर भी उस लिक्विड का कम होगा। अगर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम है तो वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी और वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। सेकेंड जो फैक्टर है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है दैट इज टेम्परेचर। आपको पता है कि टेम्परेचर अगर आप ज्यादा कर दें लिक्विड का तो इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी, और रेट ऑफ इवेपोरेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो हायर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, हायर विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। नेक्स्ट वी विल कंसिडर कि अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दें किसी लिक्विड में तो उससे वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है उस लिक्विड की। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल जिनके वेपर्स ना बने, जो वेपराइज ना हो। जैसे आप पानी में नमक डाल दो तो पानी में नमक डालने पे क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर विल डिक्रीज, उससे वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर विल डिक्रीज। क्यों होगा ऐसा? सो दिस वी आर स्टडिंग एक्चुअली कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ addition of non-volatile solute in liquid, pure liquid। तो दो केसेस हैं देखिए, एक है बिल्कुल प्योर लिक्विड, सपोज दिस इज H2O। सेकेंड केस मैं कंसिडर कर रहा हूं कि जिसमें आपने H2O में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे NaCl ऐड कर दिया। नाउ NaCl जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस एरिया कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करेंगे, और आपको पता है कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा लिक्विड के लिए इवेपोरेट होने के लिए उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। इस केस में सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वाटर टू गेट इवेपोरेटेड इज मोर। इसमें क्या हुआ है? इसमें NaCl पार्टिकल्स ने कुछ सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, और इससे क्या होगा कि H2O के लिए सरफेस एरिया इवेपोरेट होने के लिए कम अवेलेबल होगा, इसलिए इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी, और रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होने से वेपर प्रेशर कम होगा। तो जब भी आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो किसी लिक्विड में, उससे लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा।
that will lead to decrease in the vapor pressure of the liquid. Next is very important law, and that is Raoult's law. बाइनरी सॉल्यूशंस में जो हर एक कंपोनेंट है उसका कितना पार्शियल प्रेशर होगा इन केस ऑफ सॉल्यूशन, कितना पार्शियल प्रेशर होगा, दैट कैन बी नोन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ. अब दो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है यहां पे. एक को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सॉल्यूट को बी से, दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं सॉल्वेंट को ए से. सो बी इज सॉल्यूट एंड ए इज सॉल्वेंट. जब इन दोनों को मिक्स करके आपने कोई सॉल्यूशन बनाई है, अब ये केस हो सकता है कि दोनों ही मान लीजिए लिक्विड्स हैं, और एक केस हो सकता है कि सॉल्यूट मान लीजिए नॉन वॉलेटाइल है. तो फर्स्ट केस में कंसिडर करूंगा कि दोनों मान लीजिए बोथ ऑफ देम आर लिक्विड्स, बोथ आर लिक्विड्स. दोनों को जब मिक्सअप करेंगे तो सॉल्यूशन में बी करके भी पार्शियल प्रेशर होगा, ए करके भी पार्शियल प्रेशर होगा, दोनों कंपोनेंट्स का अपना अपना प्रेशर होगा. और रॉल्ट्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है बी कंपोनेंट का, PB, this is partial pressure of B component, partial pressure of the solute. This will be equal to product of, this will be equal to PB naught and XB, product of PB naught and XB. XB क्या है? XB is mole fraction of B. PB naught is pressure due to pure B. अगर प्योर बी लिया जाए तब कितना प्रेशर होता है, इसका कितना वेपर प्रेशर होता है बी का, दैट इज पीबी नॉट. और पीबी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. सो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, पीबी हैज टू बी इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्सबी एंड पीए विल बी इक्वल टू पीए नॉट एक्सए. और टोटल प्रेशर अगर निकालना है आपने, total pressure PT will be equal to PA plus PB, and if we put the values, PA is PA naught XA and PB is PB naught XB. So this is the total pressure of the binary solution, और ये sum total है of partial pressures of A and B in the solution. So Raoult's law क्या कहता है? Raoult's law कहता है कि जो partial pressure होगा B component का in the binary solution, that will be product of its mole fraction and the pressure exerted by pure B. Similarly, in case of A, PA will be equal to PA naught into XA. XA is the mole fraction of the A component and PA naught is the pressure exerted by pure A अगर इसको separately लिया जाए. और total pressure जो होगा solution का, that will be equal to sum total of PA and PB. और PT will be, total pressure will be PA naught XA plus PB naught XB. This is Raoult's law. अब second case लेना है हमने. इसमें तो हमने दोनों liquids लिए, दोनों करके pressure था, vapor pressure था. अब हम कंसिडर करें कि अगर ऐसी सॉल्यूशन हो जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला गया हो इन टू द लिक्विड. फॉर एग्जांपल NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर. NaCl इज नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. तो क्या होना चाहिए? देखिए टोटल प्रेशर की जो एक्सप्रेशन आई थी, दैट वाज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. So this was the expression for the total pressure. अब मैं कह रहा हूं कि अगर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट लिया जाए तो सोल्यूट करके प्रेशर क्या होगा उस केस में? What should be PB? PB will be 0, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं जिनका वेपर्स ही नहीं बनते. जब वेपर्स ही नहीं बनते नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स के, तो उन करके प्रेशर क्या होगा? प्रेशर विल बी 0. So PB not XB, that is PB will be taken as 0 अगर solution is ऐसी बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स आर डिसॉल्व्ड इनटू द लिक्विड. सो दिस एक्सप्रेशन विल बी P total will be equal to PA naught XA only. This will be P total because
Pb will be 0. Pb naught into Xb will be 0. It is a solution containing non-volatile solute particles. So now, this form of Raoult's law can be extended also. We can also write it as P total, Pa naught, X को हम लिख सकते हैं 1 minus Xb, because binary solution है और हमें पता है कि XA plus XB is equal to 1. यहां से हमने XA की जगह देखिए XA will be equal to 1 minus XB. तो यहां पे डाल दिया हमने Pa naught into 1 minus XB. So this will come out to be Pt Pa naught minus Pa naught XB. इस एक्सप्रेशन को इस साइड लेके आए. This will be Pa naught XB is equal to Pa naught minus Pt. So this will be Xb will be equal to Pa naught minus Pt upon Pa naught. So this is another form of Raoult's law और ये कह रहा है हमें कि Pa naught minus Pt. So what is Pt? Pt is the pressure exerted by the solution. कौन से केस में? जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने डाला हुआ है सॉल्यूशन में, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन, और ये कम होगा एज कंपेयर टू Pa naught. Pa naught is the pressure of pure solvent and Pt is the pressure of the solution containing non-volatile solute. Or this is actually relative lowering in vapor pressure because Pa naught minus this Pa naught minus Pt क्या है? This is lowering in the vapor pressure. जब pure water था, वही एग्जांपल लें कि NaCl आपने पानी में डाल दिया और पानी का जो प्रेशर है अकेले पानी का, प्योर वाटर का, वो क्या होगा? Pa naught. और ऐसी सॉल्यूशन जिसमें कि आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, जैसे आपने NaCl वाटर में डिसॉल्व कर दिया, उसका जो प्रेशर होगा दैट विल बी Pt. Pt is the pressure of the solution containing non volatile solute. So Pa naught minus Pt क्या आ गया? Lowering in the pressure. जब आपने नमक डाल दिया पानी में तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आएगा and that is Pt. और Pa naught is the pressure of pure water. So this is lowering in vapor pressure with respect to what? With respect to pure water's vapor pressure. So this is relative lowering in vapor pressure and this is equal to Xb. So this is another form of Raoult's law और ये मैंने निकाला है ऐसी solutions के लिए which contain non-volatile solute particles in them. This expression you have to remember because they can be numericals on the basis of this relative lowering in vapor pressure. I'll revise this once again कि ये terms हैं क्या? Pa naught is the vapor pressure of pure solvent. For example, आप केस लीजिए वही वाला कि आपने प्योर वाटर लिया है, प्योर वाटर, और एक केस है दूसरे वाला जिसमें आपने वाटर में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए. इसका जो प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का, प्योर वाटर का, दैट विल बी Pa naught वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, और इसका जो प्रेशर होगा दैट विल बी एक्सप्रेस्ड बाय P total in this case, or we can also express this as PS, vapor pressure of the solution. This vapor pressure will be less as compared to Pa naught, vapor pressure of pure water. So this is Pa naught is, this Pa naught is the vapor pressure of pure water, Pt is the vapor pressure of the solution containing non-volatile solute upon Pa naught. So this is relative lowering in vapor pressure which is equal to mole fraction of the solute particles. So this was Raoult's law. Next topic in case of solutions is types of solutions. There can be two types of solutions. First is ideal solutions.
आइडियल सॉल्यूशन जो है वो ऐसी सॉल्यूशंस हैं जिसमें ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ ए एंड बी बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। अब देखिए हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशंस की। ए टाइप ऑफ इंटरेक्शंस मींस सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, बी बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस मींस सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। और ऐसी सॉल्यूशंस जिसमें ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, मतलब आपने जब मिक्सअप कर दिया दोनों कंपोनेंट्स को, तब जो इंटरेक्शंस आ रही हैं ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, दे शुड बी सिमिलर टू, वो सिमिलर होनी चाहिए ए एंड बी बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस के साथ। तो ऐसी सॉल्यूशंस जिसमें ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस are similar to those of AA and BB type of interactions are called ideal solutions। और ideal solutions में delta H mixing will be equal to 0. In case of ideal solutions, delta V mixing will also be 0. The change in volume that will be equal to 0. That means अगर 5 मिलीलीटर A को आप 5 मिलीलीटर B के साथ मिक्स कर रहे हो तो it has to be 10 मिलीलीटर only। ऐसा नहीं है कि 9.99 करके जो वॉल्यूम आ जाएगी सॉल्यूशन की, या 10.001 करके कोई वॉल्यूम आ जाएगी सॉल्यूशन की। Delta V mixing will be 0. Delta H mixing will also be 0. Enthalpy change will be equal to 0. Next is that Rod's law will be followed. PA will be equal to PA naught XA and PB will be equal to PB naught XB. That is, P total or P solution in this case will be equal to PA plus PB equal to PA naught XA plus PB naught XB. So ideal solutions are the solutions, ऐसी solution जिसमें A B interaction जो है वो similar होनी चाहिए to those of AA and BB interactions। डेल्टा H मिक्सिंग इनमें 0 होना चाहिए, डेल्टा V मिक्सिंग इनमें 0 होना चाहिए। PA should be equal to PA naught XA, PB should be equal to PB naught XB and P total will be equal to PA plus PB equal to PA naught XA plus PB naught XB। और इसको ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना है कि आइडियल सॉल्यूशंस के केस में जो ग्राफ बनेगा प्रेशर्स का, पार्शियल प्रेशर्स का अगर ग्राफ बनाना हो आपने, that will be like this। यहां पे XA is equal to 1 and XB has to be 0 इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे XA is equal to 0 and XB is equal to 1। So this graph जहां पे XA is equal to 1 और XB is equal to 0, this pressure has to be PA naught, or this line will be for PA, partial pressure of A equal to PA naught XA। और इस पॉइंट के corresponding somewhat here it will be PB naught, partial pressure of pure B, because XB is equal to 1 here and XA is equal to 0, or this line will be for PB equal to PB naught XB, and this line will represent P total equal to PA plus PB। So this will be representation of partial pressures and total pressure in case of ideal solution। It will be a straight line graph। और ideal solution का एक example मैं बताता हूं आपको। For example, benzene and toluene। बेंजीन को मिक्सअप करें हम टॉलुइन के साथ तो it will be a case of
ideal solution, because type of interactions existing between the benzene molecules and the type of interaction existing between the toluene molecules, they are similar, और जैसी interactions होनी है benzene और toluene के साथ, so AB interactions in this case will be equal to AA and BB type of interactions. Similarly, normal hexane and heptane, normal heptane, इनको मिक्सअप किया जाए, then we will obtain a ideal solution. Next type of solutions are, second type, non-ideal solutions. Second type are non-ideal solutions. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन सी हैं जिसमें कि AB टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर नॉट सिमिलर टू AA एंड BB टाइप ऑफ इंटरेक्शंस. सो इन दिस केस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में AB टाइप ऑफ इंटरेक्शंस they are interactions are not similar to, they are not similar to AA and BB type of interactions. Number two, इन केसेस में नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में डेल्टा H मिक्सिंग will not be equal to 0. Next is that delta V mixing will also be not equal to 0. Next case कि they will not follow Raoult's law. In cases में PA will not be equal to PA not XA, PB will not be equal to PB not XB. और therefore जो टोटल प्रेशर होगा P total will not be equal to PA not XA plus PB not XB. So नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसी सॉल्यूशंस होती हैं जिसमें कि AB टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर नॉट सिमिलर टू AA एंड BB टाइप ऑफ इंटरेक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इन केसेस में डेल्टा H मिक्सिंग जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0, दे विल नॉट फॉलो रॉल्स लॉ. PA जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट विल नॉट बी इक्वल टू PA नॉट XA, PB will not be equal to PB not XB. Therefore total pressure जो होगा solution का वो PA not XA plus PB not XB के बराबर नहीं होगा. और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह की हो सकती हैं फर्दर, और दो टाइप्स जो है इनकी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing positive deviation and नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing नेगेटिव डेविएशंस. इनकी फर्दर दो टाइप्स हमने करनी है. फर्स्ट करेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing positive deviation from the ideal behavior. Showing positive deviation. तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन जो है ऐसी सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, वो ऐसी सॉल्यूशंस होंगी जिसमें AB टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर वीकर देन AA एंड BB टाइप ऑफ इंटरेक्शंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने याद रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन कौन सी शो करेंगी, जिसमें AB टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो है दे आर वीकर एज कंपेयर टू AA एंड BB टाइप ऑफ इंटरेक्शंस. इसलिए इसमें क्या होगा, AB टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर वीकर देन AA एंड BB टाइप ऑफ इंटरेक्शंस. तो क्या होना चाहिए,
वेपर प्रेशर ज्यादा बनना चाहिए सॉल्यूशन केस में इसमें या कम बनना चाहिए एज कंपेयर टू ए एंड बी? मैं कह रहा हूं कि ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर वीकर एज कंपेयर टू ए एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। तो जब सॉल्यूशन बनेगी इस केस में ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस वीक हैं क्योंकि, तो इसलिए उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, वेपर्स बनाने की कैपेसिटी जो है दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू ए की जो इंटरेक्शंस हैं, क्योंकि वो they are greater as compared to BB type of BB interactions are also greater than AB type of interactions। इसलिए AB वाले केस में जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी मॉलिक्यूल्स की वो ज्यादा होगी। जब एस्केपिंग टेंडेंसी इस केस में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू A एंड B, therefore इस केस में वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा। AB टाइप ऑफ सॉल्यूशन में इस केस में वेपर भी ज्यादा बनेंगे, इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। तो इसलिए इसमें क्या होगा कि अगर रॉड्स लॉ देखें सबसे पहले कि पीए जो है आइडियली क्या एक्सपेक्टेड था कि पीए जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए, लेकिन इस केस में जो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा पीए का दैट विल बी पीए नॉट एक्स ए से बड़ा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पीए विल बी ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स ए। सिमिलरली पीबी जो होगा दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन पीबी नॉट एक्स बी। देयरफॉर जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का दैट विल बी ग्रेटर देन जो एक्सपेक्टेड था, और एक्सपेक्टेड क्या था पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। तो एक्सपेक्टेड प्रेशर जो आना था टोटल, उससे प्रेशर जो है इस केस में सॉल्यूशन में ज्यादा आएगा। P total या P pressure of the solution will be greater than expected from the ideal behavior. Number 2, इस केस में delta H mixing will be greater than 0. Number 3, delta V mixing will also be greater than 0. So this is the case of non-ideal solutions showing positive deviation. तो एक बार फिर देखिए इसको कि ऐसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, वो कौन सी सॉल्यूशंस होनी चाहिए? ऐसी सॉल्यूशन जिसमें कि ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। तो जब आप ए और बी को मिक्सअप कर रहे हो तो उस केस में जो सॉल्यूशन बन रही है उसमें इंटरेक्शंस जो आ रही है कौन से मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं? ए एंड बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो है दे आर वीकर देन ए एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, इसलिए ए बी में ए बी टाइप ऑफ सॉल्यूशन में एस्केपिंग टेंडेंसी जो है मॉलिक्यूल्स की ऊपर को एस्केप करने की टेंडेंसी जो है, इवेपोरेट होने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए एंड बी टाइप ऑफ लिक्विड्स। अब एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी तो पार्शियल प्रेशर जो है, प्रेशर जो आएगा सॉल्यूशन का वो भी ज्यादा आएगा जितना कि एक्सपेक्टेड था आइडियल बिहेवियर से। So in these cases, positive deviation वाली solution जो है non-ideal solutions, in these cases PA will be greater than PA not XA, PB will be greater than PB not XB, total pressure जो है that will be greater than PA not XA plus PB not XB. Delta H mixing will be greater than 0, delta V mixing will also be greater than 0. इनका जो example, एक example consider करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस का एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इथेनॉल में अगर आप साइक्लोहेक्सेन ऐड कर दें, इथेनॉल मॉलिक्यूल्स में क्या एग्जिस्ट कर रहा है आपस में? दिस इज इथेनॉल। इस केस में ऑक्सीजन जो है ये एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। ऑक्सीजन जो है यहां पे इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव as compared to this hydrogen. What is electronegativity? Electronegativity क्या होती है? Electronegativity होती है किसी एटम की अपनी तरफ को शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की खींचने की टेंडेंसी। अब मैं कह रहा हूं यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन, तो ये वाला शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस केस में ऑक्सीजन की तरफ को ज्यादा होगा, उस करके क्या होना है, इस पे ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाना है और इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। तो इसका आगे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा अगले वाले इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ।
this is delta negative and this is delta positive. So interaction of electronegative atom of one molecule with the hydrogen atom of another molecule is a hydrogen bond. तो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स में ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आपस में, इंटरेक्शंस काफी स्ट्रांग है. अब इथेनॉल में मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन डाल दिया आपने. साइक्लोहेक्सेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और ये एक पोलर मॉलिक्यूल था इथेनॉल, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे आपस में एग्जिस्ट कर रहे. आपने साइक्लोहेक्सेन डाल दिया, साइक्लोहेक्सेन बीच में आके बैठ जाएगा और इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ को वीक कर देगा. तो साइक्लोहेक्सेन इन इथेनॉल इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन. क्योंकि देखिए इथेनॉल मॉलिक्यूल्स में टाइप ऑफ इंटरेक्शंस वर क्वाइट लार्ज, बहुत ज्यादा इंटरेक्शंस थी. आपने साइक्लोहेक्सेन बीच में डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गई साइक्लोहेक्सेन इन इथेनॉल. अब इस केस में इंटरेक्शन जो होंगी साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल की, दे विल बी वीकर एज कंपेयर टू इथेनॉल इंटरेक्शंस या साइक्लोहेक्सेन टाइप ऑफ इंटरेक्शंस. इसको अगर ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन वाले को आपने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ शो करना हो, तो दैट विल बी सेम टाइप ऑफ ग्राफ. यहां पे यू हैव मोल फ्रैक्शंस ऑन दिस साइड, x इज इक्वल टू 1 है यहां पे और xb इज इक्वल टू 0. So this axis, on this axis we have mole fractions और यहां पे xa is equal to 0 and xb is equal to 1. और इस y axis पे we have partial pressures और pressure vapor pressures of the components. So this will be, जहां पे xa is equal to 1, so this will be Pa naught. तो आइडियली बिहेवियर क्या होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी बिल्कुल. लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है सॉल्यूशन, तो उस केस में कौन सा आएगा, ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे ऊपर को पॉजिटिव डेविएशन आएगी फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. जब पीए होगा दैट विल बी ग्रेटर देन पीए नॉट एक्सए. ये वाली जो लाइन थी स्ट्रेट लाइन जो है दैट इज फॉर आइडियल बिहेवियर. पीए नॉट इज इक्वल टू पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्सए वाली लाइन है ये आइडियल बिहेवियर वाली. लेकिन अब जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो उस केस में पीए विल बी ग्रेटर देन पीए नॉट एक्सए. तो ऐसे को ग्राफ आना है. और इस साइड जो है एक्सपेक्टेड आइडियली ऐसे था, लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन आएगी तो उस केस में ऊपर को ग्राफ आएगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. और जो टोटल प्रेशर आना चाहिए था आइडियली, आइडियल बिहेवियर होता तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी पी टोटल के लिए, लेकिन इस केस में भी जो टोटल प्रेशर आएगा दैट विल बी मोर देन द एक्सपेक्टेड आइडियल बिहेवियर से जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा आएगा. तो दिस इज द ग्राफ शोइंग द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस व्हिच आर शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, उनका ग्राफ है ये. नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं व्हिच शो negative deviation from the ideal behavior. So non-ideal solution showing negative deviation from the ideal behavior. तो ऐसी non-ideal solutions कैसी होनी है जो negative behavior show करेंगी, जिसमें AB type of interactions are greater than AA and BB type of interactions. A और B को जब मिक्स कर रहे हैं तो उनमें जो इंटरेक्शंस आ रही हैं वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू AA and BB type of interactions. अगर ऐसा हो कि AB type of interactions ज्यादा आ रही हैं एज कंपेयर टू AA and BB type of interactions, तो there will be formation of non-ideal solution which shows negative deviation from the ideal behavior. तो इस केस में मैं कह रहा हूं देखिए कि AB type of interactions, AB type of interactions are greater, are more or greater than AA and BB type of interactions.
तो अगर ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस आ रही है वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ए एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, तो इस केस में जब ए और बी को आपने मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दी, तो एस्केपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल्स की क्या होनी चाहिए? एस्केपिंग टेंडेंसी जो है मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि अब इंटरेक्शन ज्यादा हैं। जितनी ए और बी में थी आपस में, उससे अब इंटरेक्शन ज्यादा है, तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जानी है? कम हो जानी है। एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जानी है इस केस में, तो वेपर फॉर्मेशन कैपेसिटी क्या हो जानी है? वो भी कम हो जानी है। तो वेपर प्रेशर क्या आएगा? वो भी कम आएगा। किससे? जितना एक्सपेक्टेड था फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो इसलिए इस केस में non-ideal solution showing negative deviation PA will be less than PA not XA. Ideally जो पार्शियल प्रेशर ए का था that should have been equal to PA not XA के बराबर होना चाहिए था, लेकिन अब जो पार्शियल प्रेशर ए का आ रहा है वो कम आ रहा है फ्रॉम एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, उससे कम आएगा। PA will be less than PA not XA. Similarly PB will be less than PB not XB, और P total will be less than PA not XA plus PB not XB. इतना एक्सपेक्टेड था फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर कि टोटल प्रेशर क्या होना चाहिए था? PA not XA plus PB not XB के बराबर होना चाहिए था, लेकिन अब जो टोटल प्रेशर आ रहा है दैट इज लेस देन जितना एक्सपेक्टेड था फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। सेकेंड, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी लेस देन 0। नेक्स्ट, इस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग विल ऑल्सो बी लेस देन 0 बिकॉज ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू ए एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। तो इसमें ये केस हो सकता है कि अगर 5 मिलीलीटर ए को मिक्स किया विद 5 मिलीलीटर ऑफ बी, तो जो वॉल्यूम आएगी आइडियली एक्सपेक्टेड थी वो आनी चाहिए थी 10 मिलीलीटर, लेकिन अब ऐसा केस हो सकता है कि कम आए 10 से, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आते कि 9.5 ही आ जाए, लेकिन जो थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है कि इट कैन बी 9.999 समथिंग, इट विल नॉट बी 10 इन दिस केस। जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा दैट विल बी लेस देन 0। So this is the case of non-ideal solution showing negative deviations. इसमें AB type of interactions are greater than AA and BB type of interactions. Therefore, PA will be less than PA naught XA, PB will be less than PB naught XB, P total will be less than PA naught XA plus PB naught XB. Delta H mixing will be less than 0 in this case, and delta V mixing will also be less than 0 in this case. अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और एक एग्जांपल लेना है हमने, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशंस का एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म एंड CHCl3 एंड एसीटोन CH3CO CH3। इस केस में ऐसा होना है कि जब आपने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्सअप करोगे तो ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस ज्यादा आ जाएंगी एज कंपेयर टू ए एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। क्यों ज्यादा आएंगे इस केस में? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और दूसरी साइड में बना रहा हूं एसीटोन। यहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखता है, इसलिए यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। एंड इन दिस केस क्लोरीन्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं ये वाले, सो दे विल बी सम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस हाइड्रोजन एटम, और इनके बीच में इंटरेक्शंस हो जानी है ये वाली ऐसे को, और इस इंटरेक्शन को कहते हैं दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब आपने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, इंटरेक्शंस आ रही हैं बीच में, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस आ रही हैं एज कंपेयर टू जो कि इंडिविजुअली इनमें थी, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में जो इंडिविजुअली जब एग्जिस्ट कर रहे थे जो इंटरेक्शंस थी दे वर वीकर एज कंपेयर टू जब अब इंटरेक्शंस आ रही हैं। तो ये ऐसा केस बन गया कि ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर मोर एज कंपेयर टू ए एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। इस केस में इन दोनों का जब मिक्सअप कर दिया आपने, सॉल्यूशन बना दी,
तो एस्केपिंग टेंडेंसी इन दोनों की अब क्या हो जानी है, कम हो जानी है, एज कंपेयर टू किससे, जैसे कि ऑलरेडी थी इनमें। तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, वेपर प्रेशर इस केस में कम आएगा एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। So this is a case, this is an example of non-ideal solution showing negative deviation from the ideal behavior. अब इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इस केस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो दिस इज एक्स ए, सेम वही वाला ग्राफ है, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स डी यहां पे क्या होगा, विल बी इक्वल टू 1। तो आइडियली ऐसे एक्सपेक्टेड था स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दिस इज फॉर पी ए, दिस ग्राफ इज फॉर पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के लिए एक्सपेक्टेड ये था ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेकिन अब इस केस में जब नेगेटिव डेविएशंस आ रही हैं तो ऐसे करके ग्राफ आएगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा दैट विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। इस केस में जो ग्राफ आएगा दैट विल बी नीचे को होगा, ऐसे को लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। जो पी टोटल आ रहा था वो ऐसे को आना था, लेकिन अब नेगेटिव डेविएशन वाले केस में पी टोटल विल आल्सो बी लेस देन expected from the ideal behavior. So this is the graph showing non-ideal solution which are showing negative deviation from the ideal behavior. तो दो तरह की solutions हमने डिस्कस किए हैं, ideal solution या non-ideal solutions। non-ideal solutions के भी आगे दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए, ऐसी solutions non-ideal वाली जो positive deviation शो कर रही है और ऐसी solution non-ideal वाली जो negative deviation from the ideal behavior शो कर रही है। फर्क बस इंटरेक्शंस में था, जहां पे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वो ऐसी सॉल्यूशंस हैं जिसमें ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। और जो नेगेटिव वाला हमने देखा है, नेगेटिव डेविएशन जो शो कर रही है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ऐसी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वो वाली सॉल्यूशंस हैं जिसमें ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर ग्रेटर देन ए एंड बी बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस।